Welcome class 12. In our previous video we had seen the circumstances under which a secretary has to enter into correspondence with member. In there we had seen the different kinds of the occasion on which the secretary have to communicate with the members of the company. Now in today's video we will see the first occasion where the company secretary has to communicate with the member of the company. That is the letter for issue of share certificate. It is issued by the company according to the SEBI circular. Company have to send the share certificate by the registered post for the following the circular of the SEBIs. Now you can see on your screen there has the one format as given for the share certificate. You can see like that. Okay. Now guys, there has the first on the top you can see the name of the company has given in the block letter, that is the Comfort Motors Limited. Means you have to write the name of the company into the block letter. Thereafter the registered office, means we have to write the registered office of the कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होएगा उसका नाम लिखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ उसके जो एड्रेस हैं, मीन्स जो भी कंपनी का जो हेड ऑफिस होएगा वो किस स्टेट में है वो पूरा एड्रेस लिखना पड़ेगा. ओके, सो यू कैन सी देयर रिटन हैज देयर A/30 अचोरा टावर्स MG रोड कैंप पुणे 411012. दिस इज़ द एड्रेस ऑफ द कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस है ये. Thereafter you can there scene has written. Guys, scene is very important because the full form of scene is the corporate identity number. ये corporate identity number है. In there you can see there is some digit and alphabets is given. So मैं आपको बता सकती हूँ कि ये क्यों इतना ये जो लॉन्ग नंबर्स दिया डिजिट एंड प्लस मिक्सचर ऑफ द अल्फ़ाबेट, इसका मतलब क्या है. You can see there has the first written the U. U means guys the company is listed or unlisted in the stock exchange. Means वो company stock exchange में listed है या unlisted है. ये U अगर listed है so there will be L, वहाँ पे क्या रहेगा L. बट अगर company unlisted है in stock exchange so there will be U will be there. Okay, मतलब वहाँ पे क्या रहेगा U रहेगा. So you can see there has a U has written means this company is the unlisted company. Now thereafter you can see the remaining 5 digits from this series given by the ROC to the company to know about the types of the industry. After the U, you can see there is a 5 digit has given 1212111. This is the number. ये नंबर कौन दे रहा है, किसने दिया है. दिस इज नंबर इज गिवन बाय द ROC टू द कंपनी. ये नंबर ROC ने कंपनी को दिया है. ये पता करने के लिए इससे ये मालूम पड़ेगा कि वो कंपनी कौन से टाइप्स की है. ठीक है. देयर आफ्टर यू कैन सी देयर हैज़ द अनदर 2 डिजिट हैज़ गिवन. ओके, विच इज़ रिलेटेड टू द स्टेट कोड. ये किससे रिलेटेड है, स्टेट कोड से रिलेटेड है, जिससे ये मालूम पड़ेगा कि वो जो कंपनी है वो कौन से स्टेट की है. ओके, लाइक अगर महाराष्ट्र की है तो MS विल बी देयर, यूपी की है तो यूपी विल बी देयर. ओके, सो 2 डिजिट इट इज़ रिलेटेड टू स्टेट कोड विच इज़ गिवन बाय द ROC टू द कंपनी. जो ROC ने कंपनी को दिए हैं टू नो अबाउट द स्टेट ऑफ द कंपनी. जो कंपनी कौन से स्टेट से बिलोंग करती है ये वो बताता है. Thereafter you can see there has the 4 another digit has given. So next these 4 digit given to the company by the ROC to know about the establishment of the company. Means company कब बनी है ये उसका बताता है. ये numbers वो बताएंगे. Okay. Now thereafter you can see there has the PCL has given. So this another 3 digit specify the types of the company. Means company कौन से types की है, पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है,
गवर्नमेंट कंपनी है या 1 पर्सन कंपनी है. ओके, सो PCL मीन्स द टाइप्स ऑफ द कंपनी, कौन सी कंपनी कौन से टाइप्स की है. दे आफ्टर अनदर, you can see there is another 6 digit is there which is given by the authority to the company for the identification. Okay, now let's come down. You can see there has the on the left side. Okay, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो. देयर हैज़ द फोन नंबर हैज़ गिवन. ओके, कंपनी का फ़ोन नंबर होएगा. देन फैक्स नंबर विल बी देयर एंड रेफरेंस नंबर विल बी देयर. व्हाट इज़ द रेफरेंस नंबर? रेफरेंस नंबर मीन्स इट इज़ नेसेसरी फॉर द डॉक्यूमेंटेशन. ये किसके लिए होता है? फॉर द डॉक्यूमेंटेशन. और ये एज इट इज़ हम लिख सकते हैं, इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती. ओके, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू चेंज. ये एज इट इज़ आप लिख सकते हो. ओके, नेक्स्ट you can see there's a left hand side, right hand side, websites has given. Thereafter you can see the email has given and date भी दिया हुआ है, मीन्स ऑन विच डेट यू आर राइटिंग द लेटर. कौन सी दिन आप लेटर सेंड कर रहे हो वो डेट भी रहेगा उधर. ओके, यू हैव टू मेंशन देयर. Thereafter come to the left hand side. Okay, you have to write the name and address of the person to whom you are writing a letter. मीन्स आप लेटर किसको लिख रहे हो, उसका नेम रहेगा और उसका एड्रेस रहेगा. ओके, नाउ लेट्स कम डाउन. द मेन पार्ट ऑफ द लेटर, दैट इज द सब्जेक्ट. Means for which purpose you are writing the letter, so that will be come here. So our purpose is writing a letter for the issue of share certificate, so that will be come here. Now thereafter the salutation, dear sir, respected sir. Okay, this will be come here. Thereafter it is now come to the main body of the letter. This is to inform you that as per your request application number 50. Okay, ये कौन बोल रहा है? इट इज़ रिटन बाय द सेक्रेटरी. कौन लिख रहा है? ये सेक्रेटरी लिख रहा है. सो यहाँ पर सेक्रेटरी इन्फॉर्म कर रहा है एज पर योर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर 50. मीन्स आपने रिक्वेस्ट की थी, आपके रिक्वेस्ट के मुताबिक जो आपने एप्लीकेशन नंबर 50 में जो रिक्वेस्ट की थी उसके मुताबिक आई एम हियर बाय ऑथोराइज टू इशू यूर शेयर सर्टिफिकेट. मीन्स यहाँ पर मैं हूँ जो ऑथराइज किया गया हूँ आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए. ओके, द सेड शेयर सर्टिफिकेट विल बी डिलीवर्ड टू यू विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ दिस लेटर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट टू योर रजिस्टर्ड एड्रेस. मीन्स ये जो शेयर सर्टिफिकेट है मैं जिसकी बात कर रहा हूँ आपको इशू करने के लिए, वो आपको डिलीवर्ड हो जाएगा. कितने दिनों में? 15 दिनों में. किसके थ्रू होगा? बाय दी रजिस्टर्ड पोस्ट. मीन्स ये जो लेटर मैं भेज रहा हूँ, ये लेटर मैंने जिस डेट को भेजा है उस दिन से लेके 15 दिनों के अंदर आपको थ्रू द रजिस्टर्ड पोस्ट और आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे ये शेयर सर्टिफिकेट आपका पहुँच जाएगा. ऐसा मुझे कंपनी ने ऐसी अथॉरिटी दी है आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू करने की. ओके, मीन्स यहाँ पे सेक्रेटरी क्या बोल रहा है कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू डैट एज़ पर योर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर 50. मीन्स आपने जो एप्लीकेशन नंबर में रिक्वेस्ट किया था फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर, उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी ने मुझे ऑथोराइज किया आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का. और मैं जिस दिन से लेटर लिख रहा हूँ उस दिन से 15 दिन के अंदर आपको आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट आपका शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो आपने कंपनी के रजिस्टर्ड मेंबर्स रजिस्टर में लिखवाया है. जो कंपनी का मेंबर रजिस्टर्ड है उसमें जो आपने जो मेंशन किया है रजिस्टर्ड एड्रेस, उस पर आपका शेयर सर्टिफिकेट आ जाएगा बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट. ओके, now below has given the details of the issue of share certificate are as follows. You can see there has a 4 column has given 1 2 3 4. The first column is given it is the folio number, that is the same identification number will be there. Now there are the share certificate number. द शेयर सर्टिफिकेट नंबर है ये कि कौन सा शेयर सर्टिफिकेट नंबर आपको मिला है. देन थर्ड इज़ द डिस्टिंक्टिव नंबर फ्रॉम एंड टू. मीन्स द पर्सन, जिस पर्सन को हम शेयर सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं उसने कहाँ से लेके कहाँ तक के शेयर्स होल्ड किए. मीन्स होल्डिंग ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स उसने कितने नंबर्स के शेयर्स ने होल्ड किए. सो दैट इज रिटन हियर द 301 to 400. नाउ दे आफ्टर द टोटल नंबर ऑफ शेयर कि हाउ मच शेयर
द पर्सन आर होल्डिंग, वो पर्सन कितने शेयर्स होल्ड कर रहा है. ओके, इट शैल ऑलवेज बी आवर एंडेवर टू प्रोवाइड बेस्ट ऑफ आवर सर्विसेज टू यू एट ऑल टाइम. मीन, और ऐसा भी सेक्रेटरी बोलता है बाद में, वो अपनी तरफ से एज ए फॉर्मेलिटी बोलता है कि मैं क्या करूँगा, मतलब मैं हमेशा एंडेवर रहूँगा. एंडेवर मीन्स ये मेरी कोशिश रहेगी हमेशा. मैं हमेशा मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करूँ हर समय. ओके, देयर आफ्टर इट विल कम डाउन साइड थैंकिंग यू एंड योर फेथफुली फॉर कंफर्ट मोटर लिमिटेड. मीन्स आपने हमारी कंपनी में इंटरेस्ट दिखाया, उसके लिए हम आपको थैंक्स करते हैं. देयर आफ्टर दे विल कम द साइन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी एंड देयर नेम. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट. ओके, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द होल सर्टिफिकेट. आपको ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही लिखना है. यू कैन चेंज द सम वर्डिंग्स, आप कुछ वर्डिंग चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, बट जो भी फॉर्मेट है और जो भी लैंग्वेज है वो इट विल बी रिलेटेड टू लाइक द शेयर सर्टिफिकेट. मतलब उससे रिलेटेड ही होना चाहिए, आप कुछ भी अलग से नहीं डाल सकते. ओके, सो गाइज आज के लिए इतना ही. गुड बाय.